ہرنائی ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک معصوم بچہ جاں بحق۔ کلی قلعہ گڑمی کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے ایک بچہ انور شاہ ولد ہزار شاہ موقع پر ہی جاں بحق۔ بچے کی لاش اسپتال منتقل، جہاں ضروری کارروائی کے بعد برسا کے حوالے کی گئی۔ ہرنائی بلوچستان عوامی پارٹی میونسپل کمیٹی کے صدر سید نصر اللہ شاہ، جنرل سیکرٹری شیرباز خان ترین اور دیگر نے پریس کلب ہرنائی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ضلع ہرنائی کے سابقہ حلقہ بندیوں کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل کمیٹی ہرنائی کے 2 وارڈز کو ختم کرنا عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ میونسپل کمیٹی ہرنائی کی آبادی میں اضافہ ہونے کے باوجود وارڈ کو کم کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ گوڈ ولانا کے پاس بس الٹ گئی، ایک مسافر جاں بحق، 5 سے زائد افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع۔ ریسکیو 1122 نے بروقت ریسپانس کرتے ہوئے ابتدائی طبی امداد شروع کر دی۔ بس جیو مٹھل ٹائم صادقآباد سے کراچی جا رہی تھی۔ بہاول نگر میں ڈی پی او محمد ظفر بزدار کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز کی شرکت۔ میٹنگ کے دوران ڈی پی او نے سابقہ میٹنگ میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے جاری کردہ ہدایات سے متعلق فالو اپ لیا۔ ڈی پی او بہاول نگر نے غیر تسلی بخش کارکردگی دکھانے والے ایس ایچ اوز کی سرزنش کی اور مناسب ہدایات جاری کی۔ زیر تفتیش مقدمات کو جلد میرٹ پر یکسو کریں، ملزمان کی گرفتاری یقینی بنائیں، مجرمان، اشتہاری عدالتی مفروران اور ٹارگٹ افینڈرز کی گرفتاری یقینی بنائیں۔ تھانہ کے مینول اور آن لائن ریکارڈ کو ہر صورت اپ ڈیٹ رکھیں۔ یونین کونسل جھگی والا کی بستی جھبیل میں عرصہ 28 سال سے بجلی نہیں ہے۔ مین بجلی کی تاریں ان کے گھروں کے اوپر سے گزر رہی ہیں، پھر بھی بستی جھبیل کو بجلی سے محروم کر دیا گیا۔ اس وقت وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے نور حسن ترک۔ جی نور حسن ترک، آخر کیا وجہ ہے اس بستی کو بجلی کیوں مہیا نہیں کی جا رہی؟ جی میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل جھگی والا کی بستی جھبیل میں، جو عرصہ تقریباً 28 بستی کو جو ہے نا بجلی کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اس بستی کے لوگ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے ان بستی کو جو ہے نا بجلی مہیا نہیں کی جا رہی۔ جی کو تقریباً 35 سال تھے کالونی دے رہنے ہوئے سارے لائٹ کا نہیں، ایم پی ایم تک اور جوتئی تک اور مظفر گڑھ تک درخواست نہیں تین سے ساری کوئی گال ہی کہ نہیں سن دے، اور جے کو آدھو اتنا پریشانی تھی لائٹ کو بغیر گرمی دے بہت طرفہ تھی تو کوئی ساری گال ہی کہ نہیں سن دے۔ مہربانی تھی وے تو سارے نال تعاون کرو، مین تار سارے اتو گزرتی کریے ساکو لائٹ کا کوئی بھی انتظام کرتے دینے پہ مہربانی تھی سکے تو سارے اتنے تعاون کرو۔ جی جیسا کہ بالکل ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے مقامی ایم ایل اے ایم پی اے کو بھی درخواستیں دی ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ سب ڈویژنل جتوئی کو بھی درخواستیں دی ہیں، لیکن ہماری درخواستوں کے اوپر کوئی سنوائی نہیں کی جاتی اور جھگی والا تک ہی جو وابڈا کے ملازمین ہیں وہاں جھگی والا تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ جی حاصل پور اپوزیشن لیڈر ممبر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی حاصل پور گل ہاؤس آمد۔ ایم پی اے محمد افضل گل، سابق ایم پی اے محمد صفدر گل کی رہائش گاہ پر ان سے ان کے والد محترم محمد اسلم گل کی وفات پر فاتح خوانی کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ اس موقع پر مسلم لیگی کارکنوں سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 74 سال میں اس طرح کی اذیت ناک مہنگائی پاکستان کی قوم نے نہ پہلے کبھی دیکھی نہ سنی۔ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کی اختتامی تقریب میں کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب تقسیم انعامات میں کمشنر بہاولپور ڈویژن کیپٹن محمد ظفر اقبال، سیکرٹری ٹورزم پنجاب عبداللہ فیض، ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بہاولپور عبادت نثار، ایم ڈی چولستان اتھارٹی ڈاکٹر سیف اللہ اور سول و ملٹری افسران کی شرکت۔ بہاولپور ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کا دورہ۔ دواڑ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال لاوان نے تھانہ دواڑ کا معائنہ کیا۔ فرنٹ ڈیسک پر آنے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کریں۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیں۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب مقدمات کی تفتیش میرٹ پر یکسو کریں۔ اوتل میونسپل کمیٹی اوتل کے ملازمین تنخواہوں کی بحالی کے لیے سراپا احتجاج بن گئے۔ میونسپل کمیٹی اوتل کے کنٹریکٹ ملازمین 7 ماہ سے تنخواہ سے محروم۔ ملازمین نے کام چھوڑ کر احتجاج کیا۔ شہر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے، ملازمین کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، گھروں میں فاقہ کشی۔ ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری تنخواہ بحال کی جائے۔ شیج آباد کے نواحی علاقے بستی مٹو لوہاری گیٹ میں 11 kV مین لائن کنیکشن کے کھمبے کو ٹوٹے ہوئے 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی نئے کھمبے پر منتقل نہ ہو سکا، جس پر علاقہ مکینوں کا وابڈا کے خلاف احتجاج۔ مزید جانتے ہیں ملک ندیم کی اس رپورٹ میں۔
शुजाबाद के नवाही इलाके बस्ती मिट्ठू लुहारी गेट में 11 kV मेन लाइन कनेक्शन के खंभे को टूटे हुए 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी नए खंभे पर मुंतकिल ना हो सका, जिस पर इलाका मकीनों का वापटा के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना था कि अगर खंभे का कनेक्शन बर वक्त तब्दील ना किया गया तो टूटा हुआ खंभा किसी भी वक्त गिर सकता है, जिससे करीबी आबादी को जानी नुकसान भी हो सकता है, जिसका जिम्मेदार मौजूदा वापटा के एक्सियन और SDO होंगे। कैमरामैन टीम के साथ मलिक नदीम, TNN न्यूज़, शुजाबाद। तलबा व तालिबात में पोशीदा सलाहियतों में निखार लाने के लिए मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तालीमी मैदान में एहसन कदम जमात हश्तम के लिए स्टार ऑफ हासिलपुर के मुकाबले का तहरीरी इम्तिहान मुनक्कद करवाया। मुकाबले में 38 से ज़ायद स्कूलों के तकरीबन 700 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इसी हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। तलबा व तालिबात में पोशीदा सलाहियतों में निखार लाने के लिए मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हासिलपुर का तालीमी मैदान में एहसन कदम जमात हश्तम के लिए स्टार ऑफ हासिलपुर के मुकाबले का तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद करवाया। मुकाबले में 38 से जायद स्कूलों के तकरीबन 700 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। फौरी इम्तिहान, फौरी नतीजा, वो भी एक ही दिन में। मुकाबले में पैराडाइज हाई स्कूल शाहपुर के स्टूडेंट नुमान मुमताज ने पहली, तामीर नो मॉडल हाई स्कूल काइमपुर की स्टूडेंट फरीहा रियाज ने दूसरी, जबकि पाकिस्तान इंग्लिश मॉडल स्कूल की स्टूडेंट आयशा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मोहम्मद शहबाज साहिब, प्रिंसिपल अब्दुल वहीद साहिब, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद आसिफ मुगल साहब ने पोजीशन होल्डर तलबा व तालिबात को शील्ड्स और कैश इनामात दिए। इस मौका पर तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इस काविश को सराहते हुए कहा कि मौजूदा हालात में तलबा व तालिबात के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस किस्म के मुकाबला जात वक्त की अशद जरूरत है। जबकि वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद आसिफ मुगल साहब ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अपने दीगर स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमारी एक कॉल पर लब्बैक किया और बच्चों को तैयारी करवाई। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी इस किस्म के मुकाबला जात की तकरीबात मुनक्किद करवाते रहें। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद असलम, TNN हासिलपुर। जाफराबाद की तहसील ओस्ता मोहम्मद में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ अंजुमन ताजरान के ज़ेरे तमाम एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया और ताजर धरना देकर बैठ गए। इस मौका पर ताजर बरादरी ने कहा कि अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला वाद बख्श चांडियों के दुकान से चंद रोज़ कबल चोरी हुई है, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बावजूद न चोरी शुदा सामान बरामद हुआ और न ही चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। ताजर आए रोज़ सरापा एहतजाज हैं। कसूर पुलिस का क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन, डकैत गैंग के 4 अरकान समेत 20 क्रिमिनल्स गिरफ्तार, मुल्ज़मान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूक़ा बरामद, मुल्ज़मान के कब्जा से भारी तादाद में नाजायज़ असलहा भी बरामद। रेतरा पुलिस तहसील के सबसे बड़े कब्जा माफिया गरीब मासूम अब्दुल हमीद हबीबुल्लाह के कातिल खानदान की लौंडी बनी हुई है, जबकि कब्जा माफिया मुस्तफ़ा मेरानी खानदान मजलूम खानदान को मुसलसल धमकियां और इलाका छोड़ देने के लिए दबाव डाल रहा है। रेतरा थाना के SHO को और सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त देने पर पुलिस जवाब पेश करती है कि ज़मीन का मामला है, हम दखल नहीं दे सकते। नसीराबाद के इलाके बालान शाह गोड़ साले मोहम्मद पंदरानी में कंबर शरीफ से पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह बुखारी के नवासा सैयद सनाउल्लाह शाह का आमद, जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल। इस मौका पर मुर्शद सनाउल्लाह शाह बुखारी ने नसीराबाद के कबायली शख्सियत मरहूम रईस साले मोहम्मद पंदरानी के वफ़ात पर इजहार ताज़ियत भी की और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। जलालपुर पीरवाला में ठेकेदार की मुबैना संगीन गफलत, सीवरेज लाइन सड़क किनारे डालने की बजाय शहरी की मिल्कियती प्लाट पर डाल दी। चालू सीवरेज लाइन शहरी के ज़ेरे तामीर प्लाजे में शामिल। म्यूनसिपल कमेटी ने भी नक्शा पास करके सीवरेज मंसूबे पर प्लाजा तामीर करने की गैर मशरूत इजाज़त दे दी। मंसूबे पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए ज़ाया होने का खदशा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डेरा बुगटी में अंधेर नगरी चौपट राज, DHQ अस्पताल में करप्शन उरूज पर माहाना हज़ारों रुपए मंथली देकर स्टाफ ड्यूटी देने की बजाय घरों में बैठकर मजे कर रहे हैं। मरीज दर बदर की टोकरें खाने पर मजबूर, MSDHQ ड्यूटी देने की बजाय उनकी पुष्पनाही में मसरूफ।
पाकपतन थाना चकबैदी डाकू राज बरकरार, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, पुलिस बेबस। थाना चकबैदी के इलाके बोंगा हयातुर रहमान मोबाइल में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। असलहा के जोर पर 3 मुसल्लह डाकू दुकानदार को यरगमाल बनाकर नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। पुलिस हस्बे रिवायत डाकुओं के फरार के बाद मौका पर पहुंची। तकरीबन आज सुबह 11:30 बजे का टाइम था। 3 मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल सवार मेरी दुकान पे आए हैं और उन्होंने असले के ज़ोर पे मेरे से नकदी तकरीबन 30,000 और 3 अदर टच फ़ोन छीने हैं और फिर वो इधर से फ़रार हो गया। 15 पे कॉल किया और पुलिस आई है, बस लिखा के ले गई है और कुछ कार्रवाई नहीं की है। अहमदपुर शर्किया की तारीख के 2 बड़े मंसूबों का PI के MPA मियाँ गज़ीन खान अब्बासी ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मियाँ गज़ीन खान अब्बासी का कहना था कि मैंने अवाम से जो वादे किए वो आज पूरे कर रहा हूँ। ये अहमदपुर शर्किया की तारीख की सबसे बड़े मंसूबे हैं जिनकी लागत 2.25 करोड़ है, जिनमें तामीर सड़क अज़ ओज शरीफ ता अहमदपुर शर्किया और दूसरा मंसूबा ओवरबुर्ज फिरदौस सैनमा फाटक ता बहावल व मोड़ और तामीर कारपेट रोड बहावल व ता कैंची मोड़ शामिल है, जिसके मुकम्मल होने से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बेट नंबर 16 की जानिब से निजी स्कूल में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद ट्रैफिक कवानीन की पाबंद और रोड सेफ्टी के इक़दामात को अपनाने की अहमियत को उजागर करना था। तलबा से खिताब करते हुए एडमन ऑफिसर सैयद रिजवान नकवी ने कहा कि सड़क पर हादसात एक आलमी चैलेंज है, क्योंकि लाखों अफराद सड़क के हादसात में जान से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सड़क के हादसात दुनिया में अमवात की 8वीं बड़ी वजह है। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट मुल्तान के ज़ेरे तमाम तहसील जलालपुर पीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद के ऑफिस में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने और आलूदगी से पाक करने के लिए मजहबी तंजीम दावत इस्लामी भी पेश है। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा मलक सिराज अराई की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में महकमा लाइव स्टॉक और दावत इस्लामी के ज़ेरे तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस हवाले से पहले एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट दावत इस्लामी और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत दावत इस्लामी तहसील जलालपुर पीरवाला के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पौधे मुहैया करेगी, जबकि इन पौधों की देखभाल करना उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर भी मौजूद थे। बहावल नगर 7वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौका पर हैदर स्टेडियम बहावल नगर में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबला जात मुनक्कद हुए। इस मौका पर मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार कालू कवट्टू और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह ज़िला तुरगर्ब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। ज़िला के 3 तहसीलों फॉर्म जमा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तुरगर्ब से हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर की इस रिपोर्ट में। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की और अजला की तरह ज़िला तुरगर्ब में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ जारी है। अगर बात की जाए तो तहसील जुदवा में 12 चेयरमैनों ने फॉर्म वसूल किए हैं। इस तरह मज़ीद सिलसिला जारी है। तुरगर्ब के 3 तहसीलों में फार्म जमा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शरीफ ज़र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसने आज बाकायदा फार्म जमा करवाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी की भी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद लतीफ़ शाह है और ज़िला तुरगर्ब गाँव जटका सेदान से मेरा ताल्लुक़ है। आज जुदबा तहसील चेयरमैन के कागज़ात जमा करने के लिए मोहम्मद शरीफ शाह के साथ आना हुआ। यहाँ पर लोगों के हालात देखकर बहुत खुशी हुई कि लोगों में बहुत शऊर पैदा हुआ है। जब से ज़िला बना है अल्हम्दुलिल्लाह तहसील चेयरमैन के कागज़ात में 12 अफराद ने कागज़ात जमा कर दिए हैं और जनरल कौंसलर के लिए भी मुख्तलिफ़ हलक़ों से कागज़ात जमा हो रहे हैं। और हम दरख्वास्त करते हैं ज़िला तुरगर्ब बिलखुसूस तहसील जुदबा के आवाम से कि आप उस शख्स का इंतखाब करें जो आपका खिदमत कर सके। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शरीफ शाह साहब इस तहसील चेयरमैन के लिए मुंतखब होंगे और आवाम भरपूर इनकी हिमायत करेंगे और इंशाअल्लाह हम आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ शाह है। मैं तहसील जुदवा तहसील नाज़िम के लिए कागज़ात जमा कर लिया अभी, और तहसील नाज़िम के लिए 12 लोगों ने फार्म लिया है। अभी तक मैंने एक फार्म अभी तक जमा कर लिया। आज 14 तारीख़ है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं हम लोगों की खिदमत करें और हमारा ख्वाहिश है कि हम अपने ज़िले और अपने तहसील के लिए खिदमत और अपने आवाम के लिए खिदमत कर लें।
اس لیے میں نے کاغذات لیے اور اس لیے ابھی جمع کراؤں جمع کر لیا.